वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैग्नेटिक मटेरियल का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी टॉपिक को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सो इन अर्लियर सेक्शन you have seen that atoms with unpaired electrons have net magnetic dipole moment। तो लास्ट सेक्शन में हमने जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज एट द सेंटर। सो उसका हमने डिटेल स्टडी किया था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। सो द बल्क मटेरियल इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सच आइटम ईच हैविंग एन इनहेरेंट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो जो बल्क मटेरियल है, ठीक है, तो वो फॉर्म होता है लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, दे आर कनेक्टेड टुगेदर एंड दैट फॉर्म्स द बॉन्डिंग। सो दैट फॉर्म्स द मैग्नेटिक मूवमेंट। द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड एंड हेंस नेट डायपोल मूवमेंट of many bulk material is zero. So for some material such as Fe3O4, the vector addition of all the magnetic dipole moments may not be a zero. Such material have the magnetic moment। तो यहाँ पे Fe3O4 जो मटेरियल है, ठीक है, इसको कंसिडर किया है और इसमें जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट्स है दैट may not be a zero। So such material has a net magnetic moment। So the ratio of magnetic moment to the volume of the material is called as a magnetization। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन एक रेशियो है मैग्नेटिक मूवमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट एंड उसका जो वॉल्यूम रहेगा मटेरियल का, ठीक है, उसको कंसिडर करके ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैग्नेटाइजेशन है। So the magnetization is denoted by the capital M। So M is equal to M net divided by volume। So this M net is the magnetic moment and this volume is the volume of the material। So called as the equation number 11.12, where M is the vector quantity having the dimension। तो M जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है दैट इज मैग्नेटाइजेशन। सो कंसिडर अ रॉड such as a material with some net magnetization placed in a solenoid with n turns per unit length। तो यहाँ पे हम एक मैग्नेटिक मटेरियल का रॉड कंसिडर करेंगे दैट हैज़ अ मैग्नेटाइजेशन एंड इट इज़ प्लेस एज अ सोलिनॉइड विथ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे टर्न्स रेशो दिया है n पर यूनिट लेंथ एंड कैरिंग द करंट I एंड करंट I उसमें से फ्लो हो रहा है थ्रू दिस रॉड। So the magnetic field inside the solenoid is given by B0 is equal to mu0 and I। So this B0 is the magnetic field। So let us denote the magnetic field due to the material kept inside the solenoid by the Bm। ठीक है, तो यहाँ पे जो magnetic field है inside the solenoid it is denoted by the Bm। So mu0 is the permeability and n is the number of turns per unit length and I is the current flowing through that rod। So therefore the net magnetic field inside the rod can be expressed as B is equal to B0 plus Bm। So this Bm is the magnetic field due to the material that is kept inside the solenoid, it is denoted by the Bm। So the जो net magnetic field है inside the rod it is the summation of B0 plus Bm। So it is observed that Bm is proportional to the magnetization which is denoted by M of the material। ठीक है, तो यहाँ पे जो Bm है, ठीक है, एंड जो मैग्नेटाइजेशन है दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देयरफॉर वी कैन राइट Bm is equal to mu0 into M, where this M is the magnetization and mu0 is the permeability of the free space which is constant। So therefore the net magnetic field B is equal to mu0 Ni, that is from this equation, and plus mu0 into M, that is the total magnetic field inside the solenoid, that is Bm। So called as the equation number 11.14। So here we will introduce one more quantity called as the magnetic field intensity H। ठीक है, तो इसमें हम एक न्यू क्वांटिटी ऐड करेंगे जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं।
So where H is equal to Ni, where N is the number of turns per unit length and I is the current flowing through the that rod. ठीक है, so that will be the magnetic intensity. So the noticeable difference between the expression for B and H is that H does not depend on the material rod which is placed inside the solenoid. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं है. ठीक है, जिस मटेरियल का रॉड हमने यहाँ पे प्लेस किया है इनसाइड द सोलेनॉइड. सो देयरफॉर B is equal to mu 0 H plus mu 0 M. So this B is equal to mu 0 is take common, so it is taking outside the bracket. In bracket it is H plus M. So H is the magnetic intensity and M is the magnetization, called as equation number 11.15. So H is equal to B upon mu 0 minus M. ठीक है, so that is the equation for the magnetic intensity. So from above expression we conclude that H and M have the same unit. ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन का जो यूनिट है वो सेम है, दैट इज़ एम्पियर पर मीटर. सो दिस मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन यूनिट इज़ एम्पियर पर मीटर एंड ऑल्सो हैव द सेम डायमेंशन. ठीक है, तो दोनों भी वेक्टर है तो उनके जो डायरेक्शन है वो सेम है एंड डायमेंशंस आर ऑल्सो सेम. Thus magnetic material induced in the material B depends on the H and M. तो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ B, सो दैट विल डिपेंड ऑन द magnetic intensity as well as magnetization. So further it is observed that if H is not too strong, the magnetization M induced in the material is proportional to the magnetic intensity. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, और the this magnetic intensity, if it is not too strong, then magnetization produced in the material is proportional to the magnetic intensity, means H is directly proportional to the M. So therefore M is equal to this, X is the susceptibility of the magnetic material into H, called as the equation number 11.17. So it is measure the magnetic behavior of the material in external applied magnetic field. ठीक है, तो इससे हम जो मैग्नेटिक बिहेवियर है मटेरियल का वो यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू द मटेरियल. मीन्स हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल पे एंड वी कैन ऑब्जर्व द चेंजेस इन द दिस मैग्नेटिक इंटेंसिटी. सो दिस X is the ratio of two quantities with the same unit, that is ampere per meter, which is the unit of this magnetic intensity as well as magnetization. So hence it is a dimensionless constant. So from equation 11.15 and 11.17 we can write B, that is magnetic field, is equal to mu 0 into in bracket H plus XH bracket complete. So therefore B is equal to mu 0, then H is same in both the directions, so that's why we are taking H as a common and taking outside the bracket. So in bracket there is 1 plus X, so B is equal to mu 0 into mu r into H, called as the equation number 11.18. so mu r is equal to 1 plus X, so this B is equal to mu H. So mu is equal to mu 0 into mu r. So therefore put the value of this mu r, that is a 1 plus X. So mu is equal to mu 0 into 1 plus X, called as the equation number 11.19. So here mu is the magnetic permeability of the material, that is related to the epsilon in the electrostatics, and mu r is the relative magnetic permeability of the substance. ठीक है, तो यहाँ पे जो mu है वो magnetic permeability है मटेरियल का. ठीक है, and mu r is the relative magnetic permeability of the substance. The next topic is the permeability and permittivity. So magnetic permeability in terms of analogous to the permittivity in the electrostatic. So the magnetic permeability
directly related a permittivity in electrostatics. So it is basically tell us about the number of magnetic lines of force that are passing through the given substance. ठीक है, तो परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी से हमें जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो पास होंगे थ्रू द गिवन सब्सटेंस विच इज़ द मैग्नेटिक मटेरियल विच इज़ केप्ट इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. अगर हम मैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम पुटअप करते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन दैट मटेरियल दैट कैन बी इजीली ऑब्जर्व बाय यूजिंग द परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी. So the number of is due to the indicators of behaviors of the material in the magnetic field. So for superconductors, this x is equal to -1. If you substitute in equation number 11.18, it is observed that permeability of the material is mu is equal to 0. This means that no magnetic lines of force or magnetic lines are passed through the superconductor. तो सुपरकंडक्टर जो मटेरियल है, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल है, उसमें x का वैल्यू अगर हम -1 पुट करते हैं, जो कि इक्वेशन नंबर 11.18 में हम पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो परमेबिलिटी है ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट इज म्यू इज इक्वल टू 0. सो देर इज नो मैग्नेटिक लाइंस पास थ्रू दैट सुपरकंडक्टर मटेरियल. सो मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी दैट इज x इज द इंडिकेटर ऑफ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन मटेरियल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो सस्पेक्टेबिलिटी एक इंडिकेटर है जिससे हम मेज़र कर सकते हैं जो भी रिस्पॉन्स है गिवन मटेरियल का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में. इन अदर वर्ड, इट इंडिकेट्स दैट हाउ मच मैग्नेटाइजेशन विल बी प्रोड्यूस इन अ गिवन सब्सटेंस व्हेन केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो हम यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, सब्सटेंस का when it is put into the external magnetic field by using this suspectability. So again it is the analogous to the electrical suspectability. So this means that substance is kept in the magnetic field. The atomic dipole moments either align or oppose the external magnetic field. ठीक है, अगर हम सब्सटेंस पुट करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके जो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स है, ठीक है, तो वो एक तो अलाइन होंगे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वहाँ पे फॉर्म होंगे. सो इफ़ द एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द सब्सटेंस आर अपोज द फील्ड, सो एक्स इज ऑब्जर्व टू बी निगेटिव, जो हमने सुपर कंडक्टर्स में यहाँ पे कंसिडर किया एक्स का वैल्यू -1. एंड इफ इट इज़ एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स आर अलाइन देमसेल्फ, सो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एक्स इज ऑब्जर्व टू बी पॉजिटिव. ठीक है, तो यहाँ पे जो सस्पेक्टेबिलिटी है तो उसका डायरेक्शन एक तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स ऑफ सब्सटेंस आर अपोजिट. ठीक है, तो x का वैल्यू हम यहाँ पे निगेटिव कंसिडर करेंगे. ठीक है, एंड इफ इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, सो देन दिस x मस्ट बी अ पॉजिटिव. Then we take one example on this topic. So the example is the region inside the current carrying toroid winding is filled with the aluminum having the suspectability that is equal to 2.3 into 10 raised to -5. What is the percentage increase in the magnetic field in the presence of aluminum over that without it? ठीक है, so we start with the solution. तो यहाँ पे हमें सस्पेक्टेबिलिटी दिया हुआ है मटेरियल का दैट इज़ 2.3 इंटू 10 रेज़ टू -5. ठीक है, सो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड विदाउट एल्यूमिनियम इज़ B0 इज इक्वल टू μ0H, जो ऑलरेडी हमने लास्ट सेक्शन में डिराइव किया है. ठीक है, दिस B0 इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस μ0 इज़ द परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड H इज़ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ द मटेरियल. So the magnetic field inside the solenoid with aluminum is B is equal to μH. ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो केस कंसीडर किए. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड विदाउट एल्यूमिनियम एंड विथ एल्यूमिनियम. ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा गया कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम एंड विदाउट इट. ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दोनों केस कंसीडर किए, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनाइड विदाउट एल्यूमिनियम and with aluminum.
So we are taking the ratio of these two, so it will be a b minus b0 divided by b0 in left hand side is equal to mu minus mu0 divided by mu0. So therefore mu is equal to mu0 1 plus x, this mu upon mu0 minus 1, इस वन को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, सो इट विल बी अ माइनस 1 दैट इज इक्वल टू एक्स विच इज़ द सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल. सो म्यू माइनस म्यू ज़ीरो डिवाइडेड बाय म्यू ज़ीरो is equal to x. So therefore b minus b0 divided by b0 is equal to mu minus mu0 divided by mu0 which is equal to x. So percentage increase in the magnetic field after inserting the aluminum is b minus b0 upon b0 into 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, दैट्स वाई वी आर मल्टीप्लाई विद द 100. सो इट इज़ 2.3 इंटू 10⁻⁵ जो कि सस्पेक्टेबिलिटी हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल में इंटू 100. सो दिस b माइनस b0 अपॉन b0 इज़ द सस्पेक्टेबिलिटी हियर x. ठीक है, सो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया उसका 2.3 इंटू 10⁻⁵ इंटू 100. सो इट विल बी अ 0.0023%. सो दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो यहाँ पे हमने दोनों केस कंसिडर किए, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड विद एल्यूमिनियम एंड विदाउट एल्यूमिनियम, एंड उसका हमने रेशियो लिया है. ठीक है, तो उससे हमें टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड दैट सोलेनोइड दैट कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसमें मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ सब मटेरियल्स आर गिवन. ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल्स दिए लाइक सिलिकॉन, बिस्मुथ, देन कॉपर, डायमंड, गोल्ड, लीड, मर्क्यूरी एंड नाइट्रोजन, एंड उसका सस्पेक्टेबिलिटी दिया हुआ है. ठीक है, देन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर आल्सो गिवन एंड इट्स सस्पेक्टेबिलिटी इज आल्सो गिवन. सो दैट विल एंड दिस चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ मैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें अभी जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज़ 11.5, 11.6, 11.7 एंड 11.8. ये आपको इस ईयर में नहीं है. ठीक है, ओनली 11.3 एंड 11.4 एंड 11.1 इज़ देयर फ्रॉम दिस चैप्टर. ठीक है, तो यहाँ पे 11.2, 11.5, देन 11.6, 7 एंड 11.8 ये टॉपिक आपको ये साल एग्ज़ाम में नहीं है. ओके, सो दैट विल एंड द स्टडी ऑफ दिस मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो थैंक यू.